kids. How are you all? I hope you all are safe at your home. Last time we saw that how our India, which is the seventh largest country in the world area-wise, has so much diversity even in the food. So we will know further about it. In present scenario, the feeding habit of people are changing. You must have seen that even Punjabi families enjoy South Indian food like dosa, idli, sambar, and there are many South Indian families which may love to eat stuffed paranthas. So the feeding habit of peoples are changing. For example, if we are living in Himachal Pradesh, still we used to have dosas and paranthas and even the Bengali cuisine here. We also used to have continental food here. So the taste habits or the feeding habit of people are changing. Now the question is why these feeding habit of people are actually changing. So let's learn about the reason behind the changing taste of people. First and foremost reason is that people are no more living at the same place. They are moving from one place to another place. The reason can be that they want to live there, or they have some business purpose there, or for the education people used to move from one place to another. People used to move from small towns to cities, or from small cities to larger cities, or from one country to another country. There can be any reason. And when a person go to new place, अब आप कहीं पे जाते हैं तो आप वहाँ का खाना भी टेस्ट करते हैं ना, वहाँ की cuisine भी खाते हैं, टेस्ट करते हैं. तो in a similar way, as people are moving from one place to another place, they are getting used to the taste of different places, and this is the reason why the taste of the people are changing. They are no more dependent on the local cuisine, the traditional dishes only. They are also trying the different foods where they used to go. Next is that where does the food came from? So we all know about it that there are only two sources of food. One is plant and another is animal. So let's start with the food item from plant. मैक्सिमम जो हम खाना खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है, इंक्लूडिंग हमारे जो ऑयल्स होते हैं जिनमें हम फूड कुक करते हैं, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल है, चाहे वो सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, इवन मस्टर्ड ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो सब हमें प्लांट से मिलते हैं. वीट, राइस जो हमारी स्टेपल डाइट्स हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं. वी यूज टू गेट पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स ओनली. जो हमें प्लांट से वेजिटेबल्स मिलती हैं उनमें से कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो हम रॉ कंज्यूम करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हम कुक करके कंज्यूम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम ड्राई करके उसके बाद कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स. वी ऑल यूज टू हैव आमंड्स, वॉलनट, पिस्ता. सो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम पहले ड्राई करते हैं एंड देन वी कंज्यूम इट. And the spices, India is the largest producer of the spices in the world, and it is very important, rather an integral part of Indian cooking. Some spices are eaten fresh, जैसे ginger हो गया, turmeric हो गया, ये हम fresh भी consume कर लेते हैं. और maximum ऐसे spices होते हैं जिन्हें हम पहले dry करते हैं उसके बाद consume करते हैं, जैसे कि आपकी छोटी इलायची हो गई, आपका लौंग यानी कि clove हो गया, आपका pepper, ब्लैक पेपर जो है वो ड्राइड सीड होते हैं जिन्हें हम ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म बनाते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं. रेड चिलीज हो गई, कोरिएंडर, ड्राइड कोरिएंडर हो गया, फेन्यूग्रिक, ड्राइड फेन्यूग्रिक हो गया. तो फेन्यूग्रिक एंड कोरिएंडर ऐसे स्पाइसेस हैं जिनके लीव्स को हम फ्रेश कंज्यूम करते हैं, और जो इनके सीड्स होते हैं, सीड्स को हम ड्राई करने के बाद कंज्यूम करते हैं. तो जो स्पाइसेस हैं, कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो हम फ्रेश कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ हम ड्राई करने के बाद कंज्यूम कर रहे हैं. एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड.
Now, do you know that more and more people are giving up with non-vegetarian food because vegetarian food is healthy and easy to digest as compared to non-vegetarian food. आपको पता है कि पहले human being used to be, the early men used to dependent on the non-vegetarian food only. वो हंटिंग करता था इनिशियली, फिर धीरे धीरे उसने वो फूड प्रोड्यूसर बना, जब वो फूड प्रोड्यूसर बना तो सेटल लाइफ बिगिन हुई. सो पीपल आर टर्निंग मोर एंड मोर वेजिटेरियन नाउ डेज क्योंकि it is easy to digest as compared to non-vegetarian food. I'm not saying that having non-vegetarian food is bad. I'm just telling you a fact that people are turning to turning more towards the vegetarian food rather than non-vegetarian food. Non-vegetarian food is also equally healthy, but the vegetarian food is comparatively easy to digest. Now, food we get from animals. Milk जो हम daily consume करते हैं, every day हम 2 times milk consume कर रहे हैं, we get that from animals only. And eggs, mutton, chicken, fishes, all these are the food item that we get from animals. And आपको पता है जो एक कोई सब्जी है या कोई भी एक नॉन वेजिटेरियन चीज़ है, आप चिकन को ही ले लीजिए, आप देखेंगे कि उसको बनाने की रेसिपीज बहुत डिफरेंट होती है. अलग अलग रीजन में आप जाएंगे, उस एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कुक किया जाता है. सो डिफरेंट रेसिपीज आर फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग नॉन वेजिटेरियन dishes. Now, do you know that in some part of the world, even cockroaches, snakes, snails, and even ant eggs are eaten? See, food is very important. बिना फूड के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक रख लो, वैसे 2-3 डेज से ज़्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकते बिना फूड के. सो फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हमारी नीड है फूड, वांट नहीं, हमारी नीड है फूड. बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हु यूज टू वेस्ट फूड एंड इट इज़ रियली बैड. इस वर्ल्ड में अभी भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राउट पड़ता है और वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं होता है. आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं कि ड्राउट की वजह से वो इवन दे अटेम्प्ट सुसाइड्स. सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड. आपने देखा होगा कई बार अगर आप बर्थडे पार्टीज में जाते हैं या फिर आप किसी मैरिज सेरेमनी में जाते हैं या किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे यूज टू फिल देयर प्लेट विद द फूड और उसके बाद थोड़ा सा वो खाएंगे और बाकी का फूड वेस्ट कर देंगे, विच इज़ रियली बैड. क्योंकि बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुअर पीपल हैं जिनको फूड अवेलेबल नहीं होता है और बिना फूड के इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव. सो वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड. ऐसे लोग जो खाना वेस्ट करते हैं, आई बिलीव आइदर दे आर वेरी ग्रीडी और दे आर थॉटलेस. एंड दिस इज द रीज़न कि क्यों एवरी 16 अक्टूबर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड फूड डे टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग द फूड. सो डोंट वेस्ट फूड. बैलेंस डाइट. अब फूड तो सब कंज्यूम कर रहे हैं, फूड तो जो ममा वेजिटेबल कुक कर रही है दैट इज ऑल्सो फूड, एंड आप जो जंक फूड खा रहे हैं दैट इज ऑल्सो फूड. बट न्यूट्रिशियस फूड वो होता है और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो है बैलेंस्ड डाइट. एंड बैलेंस डाइट के बारे में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो. और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. राइट, ये 5 थिंग्स होते हैं. पंच, फूड पंच, विच इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स. एंड इन 5 चीजों के साथ साथ एक 6th आइटम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो क्या होती है? यस, यू आर राइट, दैट इज
water. So we must eat a balanced diet to remain healthy and happy. Now there are 5 principles of food which we must follow to be healthy and happy. It is buy only what you need. आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है, सिनेरियो बहुत अलग है, पहले जैसा सिनेरियो भी नहीं रहा है, तो हमें सिर्फ वही चीज़ बाय करनी चाहिए जो हमारे रिक्वायरमेंट में है. अगर आप सिर्फ उतनी ही चीज़ बाय करेंगे जितनी आपके रिक्वायरमेंट में है, तो जो बाकी की जो चीज़ है वो किसी नीडी पर्सन के काम आ सकती है. एंड कुक इट विद लव. अच्छे से खाना कुक करके फिर कंज्यूम करें. सर्व इट ब्यूटिफुली. कई बार खाना सर्व इतने ऐसे तरीके से किया जाता है कि यू लूज योर एपेटाइट आफ्टर लुकिंग एट इट. सो सर्व द फूड ब्यूटिफुली. ईट अ बैलेंस्ड डाइट. बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाना है. खाना ऐसा खाओ जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो जाए. एंड टेक ओनली एज मच एज यू नीड. जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आप खा सकते हैं, जितना कंज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ उतना ले. यू मस्ट नॉट वेस्ट फूड. So that's all for today. We are done with the chapter. Now stay home, stay safe, stay strong. Bye bye. Take care.